Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 23314444, 23421050 and 23310464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के सोमवारी अंक में आपका स्वागत है। आज सोमवार होने के कारण हम आपको सीधा अपने कार्यक्रम में सम्मिलित भी करेंगे, नियमित अपनी खबरों के साथ। यदि आप अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464 पर। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप आमंत्रित हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, let's start with the headlines. Well, benchmark domestic indices slip into negative territory. Sensex falls 217 points. Nifty closes below 22,500. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tables second batch of supplementary demands for grants in the Lok Sabha, and crude oil prices rise. Brent crude trades at $70.68 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली हुई तेज, प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 217 अंक फिसला, निफ्टी 22,500 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में दूसरे चरण की अनुपूरक अनुदान मांग सदन पटल पर रखी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़े $70.68 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी, लेकिन यह तेजी बरकरार नहीं रही और अंत में घाटे के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के रुख पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 217 अंक यानी 0.3% घटकर 74,115 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 92 अंक यानी 0.41% घाटे के साथ 22,460 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली कहीं अधिक तेज थी। इन्हें नुकसान सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.4% लुढ़क गया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.1% की गिरावट हुई। Let's take a look at the stocks in detail now. Well, the benchmark domestic equity indices today reversed initial gains and ended in negative territory amid weak global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex fell 217 points, almost 0.3%, to close at 74,115. The National Stock Exchange Nifty 50 also lost 92 points or 0.41% to settle at 22,460.
The broader market indices at the BSE ended with deeper cuts. The mid-cap index dropped over 1.4%, while the small-cap index slipped over 2.1%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, IndusInd Bank dipped over 3.8%, Zomato slipped over 2.5%, and Larsen & Toubro dropped 2.1%. Conversely, among the top gainers, Power Grid rose more than 3.1%, Hindustan Unilever gained almost 2%, and Infosys increased over 1%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended down. Among the top laggards, industrials lost over 2.3%, oil and gas slipped over 2.1%, and capital goods as well as consumer durables both fell over 2% each. In the top gainers, utilities advanced over 0.5% and FMCG rose 0.11%. Overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,877 companies declined, 1,203 advanced and 149 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 15 companies hit their 52-week high, while 90 hit their 52-week low. A look at the rupee, Manoj, and then we move on to callers waiting in the queue. बिल्कुल, कई श्रोता हमारे साथ हैं. आप सबसे आग्रह कि आप फोन लाइन पर धैर्य के साथ बने रहें. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 45 पैसे कमजोर हुआ, 87 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.73 पर कारोबार कर रहा था. And now we're joined by Ravinder calling from Delhi. जी रविंदर जी, अपना सवाल पूछिए. हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार जी. सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं हूँ, मेरी 32 साल एज है, मेरी 30,000 रुपए के आसपास मेरी सैलरी है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस पर्सन की 30,000 की सैलरी है और आगे जैसे 10 साल या 20 साल के बाद मैं मतलब ऐसा क्या करूँ इस सैलरी के साथ. 15,000 रुपए तो मेरे फैमिली में खर्च हो जाते हैं. 10 से 15,000 रुपए मैं हर महीने कहाँ लगाऊं जिससे कि मैं 15 या 20 साल बाद एक अपना फ्यूचर को सेव करने के लिए एक बेहतर अमाउंट में ले पाऊं, जिसमें मैं थोड़ा रिस्क भी ले सकता हूं और कुछ अमाउंट मेरा ऐसा फिक्स हो जिससे कि अगर मैं रिस्क लूं तो मेरा बैलेंस हो जाए, मतलब मैं नुकसान में ना जाऊं बस. चलिए रविंदर, बहुत नेक आपके विचार हैं, बहुत अच्छी सोच है. पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपकी 30 सैलरी, आप कहते हैं 15 खर्च होते हैं और उसमें से 15-20 आप बचाना चाहते हैं. बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा लोग ऐसी सोच नहीं रखते हैं आजकल. तो आज कमा और कल देखेंगे, ऐसी अप्रोच होती है. तो बहुत अच्छी सोच है. मेरा ये मानना है रविंदर कि आपको इस पैसे को थोड़ा सा डिवाइड कर देना चाहिए. कुछ पैसा आप, एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम आती है, मैं रविंदर को बताना चाहूंगा, जिसको हम आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट. और शायद कम लोग जानते हैं उसमें रिटर्न 10% से भी ऊपर आता है, क्योंकि आप जब उसको करते हैं उसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो मैजिक चलता है और साथ में आपको जो ब्याज आता है उसको भी री इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसके लेके 10% से ऊपर रिटर्न आ जाता है. हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ है. तो आप इसमें से 5,000 तो रविंदर आप उसमें करें, मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपने 15,000 में लेके चलता हूं, आप बचा रहे हैं. बाकी 5,000 एक अच्छी SIP म्यूचुअल फंड की, जिसके लिए संडे को स्पेशल कार्यक्रम होता है, एक्सपर्ट आते हैं जो कि खाली म्यूचुअल फंड्स का बताते हैं. तो एक अच्छी SIP, इस समय मार्केट डाउन है, हो सकता है थोड़ी और नीचे भी चली जाए, हो सकता है ना भी जाए, पर जो लंबे समय का निवेशक होता है वो मार्केट गिरने की इंतजार करता है. तो मुझे लगता है ये मार्केट में एंटर करने का समय है, अगर आप लंबे समय के लिए. मैं फिर दोहराना चाहूंगा इस बात, क्योंकि लोग कहेंगे कि गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ में चोट लग जाती है. तो जरूरी नहीं पहले तो वो चाकू नीचे जाए कि नहीं जाए. तो इसलिए आप एक SIP चुने. 5,000 आप एक SIP चुन ले और बाकी का जो 5,000 है वो आप एक बैंक की FD आप उसको चूज करें. मैं आपको अभी सेफ इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, बल्कि मैं ये भी कहूंगा, या तो बैंक FD आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं तो मैं एक गोल्ड ETF में आप पैसा थोड़ा थोड़ा लगाता रहें, क्योंकि गोल्ड का मुझे भविष्य अभी भी उज्जवल दिखता है, जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन. तो मैं सम अप कर देता हूं, और ये सभी दर्शकों के काम की बात है, इसलिए मुझे थोड़ा सा 1-8 मिनट फालतू भी देना पड़ रहा है, तो आपकी इजाजत से मैं दे देता हूं कि पहला मैंने आपको बताया
रेकरिंग डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलवाइए। दूसरा मैंने आपको बताया एक SIP करिए अच्छे म्यूचुअल फंड में, और लंबे वक्त के लिए करीब 5 साल के लिए आप उसको करें लगातार, और मैं उम्मीद करता हूं आपकी आगे आय भी बढ़ेगी, इतनी तो नहीं रहेगी। और तीसरा आपको मैं गोल्ड ETF, या आप सेफ चलना चाहते हैं तो किसी बैंक की FD में आप उसको, बैंक की भी स्कीम्स होती हैं उसमें आप रखें 15,000, बहुत अच्छी सोच है। उम्मीद करता हूं कि आज से 5 साल बाद आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे और हम भी खुश हो लेंगे। Sharad, are the returns which come from the recurring deposit in post office, are they tax free? No, none of the returns which I mentioned are tax free. Oh. तो टैक्स का तो अभी हम हट के देखिए, मेरा ये मानना है लालिमा के सेविंग होगी तो टैक्स होगा ना, तो पहले तो सेविंग देखें, पहले कमाई होगी तो कमाई पे टैक्स लगेगा। तो अभी रविंदर, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं लग रही है, जो इन्होंने बताया है 30,000 है तो 3,60,000, अब तो आप 12 लाख तक, तो अभी टैक्स के ब्रैकेट से ये बहुत दूर हैं, तो इसलिए मैं इनको सेफली बता सकता हूँ। All right. दिल्ली से ही हमारे साथ एक श्रोता हैं मदन जी से पहले हम कोलकाता चलेंगे। कोलकाता में हमारे साथ हैं LP कोठारी साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्ते। कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार कोठारी साहब। सर, मैं ये पूछ रहा था कि इनकम टैक्स में जो एग्जेम्प्ट लिमिट है, जैसे इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 में 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता जी, और नेक्स्ट ईयर में 12 लाख का कर दिया है जी, तो क्या ये इंडिविजुअल में ही है या HUF में भी है? HUF में क्या डिफर है या? कोठारी साहब, इंडिविजुअल HUF साथ साथ ही चलता है। इंडिविजुअल HUF का जो टैक्सेशन है जनरली एक साथ चलता है, तो आप दोनों के लिए उसको मान के चलें। बाकी पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज जो होते हैं उसमें प्रोविजंस डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल HUF साथ साथ चलता है, तो अगर आपकी HUF है तो आप HUF में भी इसका लाभ ले सकते हैं। पर सेक्शन 87A का रिबेट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो HUF में अवेलेबल नहीं होता है, इसको आप मान के चलें। जी, We're now joined by Madan. Well, that's the name we get from Delhi. Hello, Madan. Madan ji. तो क्या ये इंडिविजुअल में ही है? हेलो। हाँ जी मदन जी, एक तो आपके पास जो रेडियो चल रहा है उसकी वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए, बहुत इको हो रहा है। ओके। जी हाँ, तभी आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जी कम कीजिए वॉल्यूम। अब ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी सवाल पूछिए। जी वेलकम। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए मदन जी। मार्केट मित्र टीम को नमस्कार, कोहली साहब को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मदन जी। इनको सुनने की जब दिल करता है तो इनके मुलाकात हो जाती है, क्या शुरू पे या इधर हो जाती है। इन पेशाई इतना अच्छा बताते हैं कि खुश हो जाते हैं सबको। धन्यवाद मदन जी, बताइए। कोहली साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आई एम सीनियर सिटीजन जी। तो 15-20 पहले हमने देयर वाज प्लॉट ऑफ लैंड वी परचेज अबाउट 20 इयर्स बैक जी। वो हमने अभी बेचा है, तो बेचने के बाद मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है जी। उसके अगेंस्ट मैं कितनी देर इसको होल्ड करके रख सकता हूँ? मैं अगेंस्ट सेल ऑफ प्लॉट कैन आई बाई ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और कितने टाइम मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ ताकि मेरा लॉन्ग कैपिटल गेन? चलिए मदन जी, जब आप प्लॉट बेचते हैं तो और उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एक सेक्शन 54F होता है आयकर अधिनियम के अंतर्गत, उसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर ले लेते हैं तो वो माफ हो जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको पूरा का पूरा कंसिडरेशन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाना पड़ेगा। अब इनका सवाल था कि मैं कितने टाइम इसको रख सकता हूं, तो ये आपको जो प्रॉपर्टी है अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 2 साल के अंतर्गत और 1 साल पीछे भी जा सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। और एक और नुकता बता देता हूं कि मान लीजिए अभी आप सोच रहे हैं लूं कि नहीं लूं, बीच में रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, तो एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, बहुत पुरानी है, उसमें आपको पैसा जमा करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, और उस पैसे को फिर आपको उसी समय सीमा के अंतर्गत यानी 2 साल और 3 साल के अंतर्गत पैसा निकाल के उस प्रॉपर्टी में आपको लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कितने टाइम तक आप रख सकते हैं और कहां कर सकते हैं। By the way, if it's commercial to commercial or is residence to residence? it is his case is land to residential. So खाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्शन 54F में आपको ये फायदा देती है, कमर्शियल लेंगे तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली के पड़ोस फरीदाबाद से हमारे पास के सिन्हा जी आ चुके हैं, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मार्केट में टीम और कोहली साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सिन्हा साहब। कोहली साहब, आपसे ये जानना था जी कि साहब कुछ पक्का इसका हमको आंसर दीजिएगा प्लीज। मैं US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा था जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके प्रॉपर रास्ता बताइए ताकि इन्वेस्ट किया जा सकते हो।
स्टार्ट करना चाहता था, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे जी। चलिए प्लीज। सिन्हा साहब, पहली बात तो हम जो बात बताते हैं वो पक्की बताते हैं, कच्ची तो मुझे नहीं लगता हम इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात बता सकते हैं। खैर ये तो चलिए हल्की फुल्की बात हुई, पर यूएस स्टॉक के लिए सिन्हा साहब बहुत सारी ब्रोकरेजेस हैं इस समय दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में भी, जो कि आपको डाउ में, S&P में, नैस्डैक में इन्वेस्ट करने की सुविधा देती हैं। वहाँ के आप स्टॉक्स भी डायरेक्टली ले सकते हैं और वहाँ पर जो पैसा भेजा जाता है वो, क्योंकि यहाँ से पैसा वो US डॉलर में जाता है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आप उसमें निवेश भी कर सकते हैं। बाकायदा सेम सिस्टम है सिन्हा साहब, जैसे यहाँ डीमैट अकाउंट खुलता है वहाँ भी डीमैट अकाउंट खुलता है। एक आपको US डॉलर अकाउंट खोलना पड़ेगा या आपको यहाँ पर खुलवाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से पैसा वहाँ जाएगा। तो आप किसी भी यहाँ, क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ ब्रोकरेजेस या इंडिविजुअल कंपनीज का नाम नहीं लेते, तो आप गूगल करिएगा और या अपने किसी, आप अगर आप गूगल में एक्सपर्ट हैं तो करिए, नहीं तो किसी की सहायता लेके आपको बहुत सारी कंपनीज हैं अब जो वहाँ पर कराती हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और जवाब लंबा हो जाएगा, तो मैं सलाह दूंगा कि आप किसी ब्रोकरेज के थ्रू जाएं, आपको बहुत सारी वो कस्टमर सपोर्ट भी साथ में देंगे जी। Alright, we're now joined by Yogesh. He's online and he's from Delhi. Yes, Yogesh ji, please ask your question. थैंक यू सो मच। Welcome. सर मेरा सवाल ये है कि जो हमारा पोर्टफोलियो होता है इसमें एसेट्स में रीबैलेंसिंग कब कब करनी चाहिए और रीबैलेंसिंग करने का क्या मेथड सही है। और एक दूसरा सवाल ये था कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, गवर्नमेंट ने उसको पहले विड्रॉ किया था, फिर वापस से उसको रिटेन कर लिया था, लेकिन जब उसने चालाकी से विड्रॉ जब करा तो डेट फंड और प्रॉपर्टी दोनों में करा, और जब रिटेन करा तो सिर्फ प्रॉपर्टी पे करा। डेट फंड में अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं वापस से रिटेन किया गया? चलिए, आपका पहला सवाल था एसेट रीबैलेंसिंग कब करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। एसेट रीबैलेंसिंग का अर्थ होता है, जिन श्रोताओं को इसका नहीं पता, कि मान लीजिए अपना पैसा बैंक में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाया हुआ है, या एक ही एसेट क्लास में, मतलब आपने म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग किस्म के हाइब्रिड ले रखे हैं, स्मॉल कैप ले रखे हैं, मिड कैप ले रखे हैं और मल्टी एसेट फंड ले रखा है, तो उसको अगर हम रीएडजस्ट करते हैं तो ये तो योगेश ये डिपेंड करता है कि उस समय उस एसेट की सिचुएशन कैसी है। मान लीजिए अब जैसे आजकल जो आपने शेयर्स में लगाया है और मान लीजिए वो शेयर थोड़े से नीचे हैं, तो सही समय वही होता है जब आपको लगे कि ये एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और कैसे करना है ये तो आप पैसा वहां से निकालेंगे और दूसरे एसेट में उसको लगा देंगे। तो जिस एसेट के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हो, जैसे अभी मैंने आपसे पहले श्रोता को गोल्ड का बताया कि गोल्ड इतना महंगा होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो कुछ पैसा आप निकाल के गोल्ड में रख सकते हैं। दूसरा आपने कहा बड़ी चालाकी से, चालाकी शब्द इस्तेमाल किया, चालाकी कुछ नहीं है इसमें, डेट फंड पे इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, ये सच है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि डेट फंड्स को, हम कैपिटल गेन्स को एक तो सिंप्लीफाई करना चाहते थे, और डेट फंड्स इज लाइक एक तरह से डिपॉजिट होता है क्योंकि आपके सेफ होते हैं, जबकि इक्विटी जो होती है वो थोड़ी सी रिस्की होती है, डेट उतना रिस्की नहीं होता है। तो सरकार को लगा क्योंकि ये रिस्की नहीं है, एक फिक्स रिटर्न टाइप इन्वेस्टमेंट है, बैंक डिपॉजिट के जैसा है, तो इसलिए उन्होंने इस पे इंडेक्सेशन हटाने का फैसला किया। पर मैं समझता हूं ज्यादा फर्क प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन लाने के अब दोनों चॉइस हो गए हैं कि अब आप बिना इंडेक्सेशन के भी कर सकते हैं, इंडेक्सेशन के भी कर सकते हैं। तो ये भी तो आप देखिए ना, अब ये हम टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चालाकी समझेंगे, अब आप चालाकी कर सकते हैं, इधर लाइए जा, आप उधर जाइए, तो चालाकी कुछ नहीं है, बस ऐसा वित्त मंत्रालय में जो एक्सपर्ट्स वहां पर कमेटी बनती है, बजट बनाती है, अमेंडमेंट्स करती है, उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया जी। दिल्ली से हमारे साथ प्रवीण जी फुल लाइन पर हैं। स्वागत है आपका प्रवीण जी, सवाल पूछिए। कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। कोहली जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कुछ दिन पहले ना मैं कोई स्टॉक खरीदा था काफी बड़ी क्वांटिटी में जी, तो उसमें जब मैंने खरीदा तो उसमें 4-5% वो अप था, और मेरे खरीदने के बाद वो शाम तक 15-20% सर्किट लग के बंद हुआ जी। अगले दिन सवेरे फिर वो 10% अप हो गया, 10-15%। मैंने काफी बड़ी 15-20-22 लाख का खरीदा था जी। लेकिन जब जिस बंदे ने मेरे को सेल किया था तो शॉर्ट सेल कर दिया उसने जी। मेरे को ब्रोकर ने बताया कि आप इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट सेल किया है। इन द मीन टाइम जब नेक्स्ट डे जब मेरा टर्न आया उसको सेल करने का, जब तक मैं अब एक पाता तब तक वो फिर से कुछ सिर्फ 10-12%, 8-7% अप रह गया जी। और ऑक्शन करके और जिस बंदे ने शॉर्ट सेल किया था सभी ने उससे तो वसूली कर ली, लेकिन मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो बल्कि अब इस कंडीशन में मेरे हिसाब से सेबी को कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना चाहिए कि जो बंदा बाई कर रहा है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि जो ऑक्शन में सेल कर रहा है।
यही मेरा सवाल था। तो बोले साहब कुछ इस बारे में कुछ। पहले तो आपको जो लॉस हो रहा है और जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद है, पर प्रवीण जी जो आप कह रहे हैं ये स्टॉक मार्केट की यही खूबसूरती होती है। मैं क्षमा चाहूंगा, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। खूबसूरती ये होती है कि एक आदमी सेल करता है और एक बाय करता है, और ये भी होता है कि आपने कैश में खरीदा, दूसरे ने उसको डेरिवेटिव्स, इसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं जिसको आप ऑप्शन कह रहे हैं, और ऐसा भी होता है आपने डेरिवेटिव्स में बेचा, दूसरे ने उसको कैश में खरीद लिया, उल्टा भी हो सकता है। तो इसमें से भी दखल नहीं दे सकता कि कौन व्यक्ति कैश में खरीद रहा है और दूसरा कौन डेरिवेटिव्स में उसको बेच रहा है, या इसका उल्टा कौन व्यक्ति डेरिवेटिव्स में खरीद रहा है और कैश में बेच रहा है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और ये डिस्क्लोज भी नहीं किया जाता। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद शॉर्ट सेल कर दिया, तो आप बने रहिए प्रवीण जी। अगर लंबे वक्त के लिए लिया है, हम तो इसीलिए श्रोताओं को ये सलाह देते हैं, लालिमा और मनोज, मैं आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको लंबे वक्त के लिए लेना पड़ेगा। और मुझे एक शिकायत रहती है, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं उनसे एक शिकायत रहती है। शिकायत ये रहती है कि वो निवेशक बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। सही बात, आप मतलब 5 साल, और इसका कसूर मैं बताऊं क्योंकि आपके फोन पे आजकल एप्स हैं, तो दिन में 3 बार तो लंच के टाइम जब बैठेंगे तब वो देख लेते हैं अब कितना हो गया मेरा, दोस्तों से जिक्र भी कर लेंगे, ये देख मैंने तब लिया था, शाम को सोते टाइम फिर देख लेते हैं और सुबह उठते ही फिर देखते हैं। मुझे लगता है ये जो ऐप के जरिए आपको इतनी, और क्या होता है जब आप बार बार किसी चीज को देखेंगे तो आपका मन उसको बेचने का, खरीदने का एक बार कर ही आएगा। तो ये जो पहले जो लोग लेते थे ना, वो क्या कहते थे, लेके अलमारी में रख देते थे और भूल जाते थे। वो उनकी अगली जनरेशन निकालती थी, देखिए पापा जी हमारे लिए शेयर लेके गए थे, और पता लगता था वो तो करोड़ों रुपए के हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके भूल जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि लंबे वक्त के लिए प्रवीण जी आप रखिए, तो ये जो आपको दिक्कत आई है ये आएगी नहीं। फिलहाल जो आपको लॉस हुआ है उसके लिए हमें खेद है, पर सेबी इसमें दखल नहीं देगा क्योंकि एक ट्रेडिंग की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता बायर्स के फेवर में बना दी जाए और सेलर्स के अगेंस्ट बना दी जाए। आजकल तो लोग गिरती मार्केट में जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं प्रवीण जी, आपको पता होगा गिरती मार्केट में वो लोग कमा रहे हैं। हमारी मार्केट में कहावत है, सबके लिए बता देता हूं, देयर इज नो अपसाइड और डाउन साइड, देयर इज ओनली वन साइड विच इज राइट साइड। तो ये कहा जाता है क्योंकि गिरने पे भी लोग कमाते हैं, पर लंबे वक्त के लिए प्रवीण जी बने रहिए, आप ट्रेडिंग से दूर रहें, तो मेरी सलाह ये है जी। I would call it the great temptations and pitfalls of digitization. Absolutely. All right, let's move on. We are now joined by Ratnakar ji, and he's a regular caller, and he's calling us all the way from कोल्हापुर। जी रत्नाकर जी, आप सवाल पूछिए जी। हेलो। हाँ जी रत्नाकर जी, नमस्कार, सवाल पूछिएगा। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है जी, और पर्टिकुलर नेशन के बारे में उन्होंने इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हर एक नेशन तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते ही है जी, लेकिन ये इम्पोर्ट ड्यूटी से शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक मेरा सवाल है जी। और दूसरा सवाल है कि जो डिफेंस सेक्टर है जी, वो अभी बहुत हाई वैल्यूएशन हो गया उसका, तो अभी उसमें इन्वेस्ट करना उचित रहेगा क्या? चलिए रत्नाकर जी, आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी का स्टॉक मार्केट पर हम लोग आजकल ज्यादा टैरिफ्स की बात करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में, खासकर अमेरिका में टैरिफ्स कहा जाता है। तभी हम कह रहे हैं मार्केट्स, लालिमा और मनोज के मार्केट्स टैरिफाइड हैं। टैरिफाइड की जगह मैंने नया शब्द इजाद किया है कि मार्केट्स आर टैरिफाइड। तो देखिए उसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट सीधा पड़ता है क्योंकि जो सामान रत्नाकर जी आयात और निर्यात किया जाता है वो कंपनीज में ही बनता है, और आपके अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्रभावित होंगे तो नेचुरल बात है आपकी, जिसको हम टॉप लाइन कहते हैं, आपकी सेल्स प्रभावित होंगी, आपके प्रॉफिट्स प्रभावित होंगे। और एक दूसरे के यहाँ सामान जो आता जाता है, हर देश अपने यहाँ तो सारा सामान बना नहीं सकता, सामान की शॉर्टेज भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इससे महंगाई बढ़ती है। जब आप इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे तो सामान वहां महंगा पहुंचेगा, तो महंगाई को लेकर मार्केट जल्दी चिंतित हो जाता है। दूसरा आपने पूछा डिफेंस सेक्टर, तो मैं आपको सलाह दूंगा रत्नाकर जी, आप तो बहुत वेटरन हैं, बहुत ही समझदार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो डिफेंस सेक्टर में कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को आप तलाशते रहें। आजकल जो मार्केट में करेक्शंस आ रही हैं उसमें आप लगातार अपनी वॉच लिस्ट में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को देख दें। जैसे ही आपको लगे, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम लेने से तो अपने आप को रोकूंगा, तो आप उसको ट्रैक करते रहें। जैसे ही आपको लगे कि पीई रेशियो अट्रैक्टिव हो गई है, बुक वैल्यू अट्रैक्टिव हो गई है, उसकी टॉप लाइन आगे, उसके पास ऑर्डर बुक उसकी फुल है, उस स्टॉक को आप लंबे वक्त के लिए खरीद सकते हैं जी। ऑलराइट, let's move on. Well, the government today sought Parliament's nod to spend net additional 51,462 crore rupees in the current financial year. The second batch of supplementary demands for grants was tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha today. The gross additional spending sought by the government is over 6,78,508 crore rupees, of which 6,27,044 crore rupees will be matched by savings and receipts. हमारे साथ कई
श्रोता फोन लाइन पर हैं, आप सबसे आग्रह कि हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। सरकार ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 68 लाख से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2021 में ये पोर्टल शुरू हुआ था। लोकसभा में आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कुल पंजीकृत कामगारों में 53% से अधिक महिलाएं हैं। Yes, and India has imposed an anti-dumping duty of up to $986 per ton for 5 years on a chemical used for water treatment imported from China and Japan to protect the domestic industry from cheap inbound shipments. The Finance Ministry in its notification said that the decision has been taken following recommendations from the Directorate General of Trade Remedies, an investigation arm of the Ministry of Commerce, to impose duty on trichloroisocyanuric acid. Sorry, that sounded a bit of a tongue twister. आइए चले बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब, स्वागत, सवाल पूछिए। Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Lalima ji. Hello, Manoj. जी, Saroj ji, good evening, and there are two questions. Good evening. This part 2 of the budget session started today. Yeah. I think it goes up to 2nd, 3rd of April. Yeah. Any changes likely that can revive market? My second question is, in the tariff war, print media said today, even the pharma sector is likely to hit. I'm thinking in a different way. Is this the right time to buy in the pharma sector? Because there's a good price, low price. Probably if I'm looking at for the next 3-4 months, would it be wise to invest in pharma sector? Thank you. These are my two your questions. first question is relating to the budget session, whether there's going to be any announcement or any bill to be presented which can probably provide a boost to the market. मैं तो यही कहूँगा, आपके मुंह में घी शक्कर, because yes, why not? I mean, there could be an announcement which it doesn't take long for the markets to turn around. But I think for market to really turn around, the FPIs and the FIIs have to stop selling. Our Videshi boys, they have to stop selling, and you know it's been relentless since October. So once the selling stops, you will see the turnaround. But you never know what's in the offing in the budget. We'll probably come to know in the next few days. Regarding the pharma sector, well, Mr. Prasad, everything you said was correct. Pharma sector, low valuation, attractive valuation. There's only one thing which I would like to tweak, which is not 3-4 months. Keep 3-4 years in your portfolio. So short-term investment can be very dicey. The market can be very volatile, dicey in the next few weeks or months. So I would suggest keep the pharma sector anyway. The pharma sector must be invested for a longer term anyway. So just revisit the period which you planned in your mind, and I'm sure you're going to make a lot of money. US depends on a lot of medicines which come from India. Absolutely. Right? जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। आज वित्त मंत्री ने जो अनुदान मांग रखी है सीतारमण जी ने, वो क्या है अनुदान मांग सर? अनुदान मांग होती है जो कुछ ग्रांट्स होती हैं जितेंद्र जी, जो कि जिनको पार्लियामेंट की मोहर लगती है, जो कि केवल पार्लियामेंट में ही अप्रूव कराई जा सकती हैं। कुछ एक सरकारी फंड होता है जिसमें वो पैसे आ जाते हैं, वहां से तो वो खर्च करते रहते हैं। पर जब आपको अतिरिक्त ग्रांट चाहिए होती है तो उसको संसद की अप्रूवल चाहिए होती है, संसद की नॉड जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए होती है। तो ये अनुदान मांग वो है। बाकी अब जब मिनट्स निकल के आएंगे आज के सेशन के, तो आप देखिएगा किस किस मांग पर मंजूरी पार्लियामेंट की मिली है, वो आपको खबरों के द्वारा पता लग जाएगा। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर अभी भी हैं। महाराष्ट्र से प्रीतम जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हमारा समय अब शेष हो चुका है। हम अगले कार्यक्रम में आपको संपर्क करने के लिए और थोड़ा जल्दी आमंत्रित करते हैं। आइए बहरहाल खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। चलें वैश्विक बाजार। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। जापान का निक्केई 225 0.3% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27% लाभ के साथ बंद हुए। बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% नीचे बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक प्रमुख यूरोपीय सूचकांक घाटे में थे। अंतिम समाचार मिलने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.8%, फ्रांस का कैक 40 0.4% और लंदन का FTSE 100 0.4% ही नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। And Brent crude was trading over 0.4% up at around $70.70 per barrel. WTI crude was also trading over 0.5% up at around $67.40 per barrel when reports last came in.
और अब चले अंत में सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता दिख रहा था। भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.12% लाभ के साथ 86,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी भी 0.48% मजबूत होकर 97,860 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू, माय प्लेजर। And friends, before we wind up, here's a reminder of the headlines. While benchmark domestic indices slip into negative territory, Sensex falls 217 points, Nifty closes below 22,500. Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman tables second batch of supplementary demands for grants in the Lok Sabha. And crude oil prices rise, Brent crude trades at $70.68 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Till next time, that is tomorrow 6:30 again. Till we meet again, namaskar.